Good morning, students. Rather, it is good afternoon. Am I audible? Hello, hello. Am I audible? Sumit Ankleshwar, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. मैथ्स लेक्चर हो गया आपका? Can you see the screen? Can you see the PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is your maths lecture is over? Yes, sir. Yes, sir. Just now. Just now. Okay, okay. Good. Have you done your homework? Yes, sir. Good. So let us check your homework now. Okay, all of you switch on your camera and show me what homework you have done. One by one we will go. Okay. Nisha Sriram, are you there? Sir. Switch on your camera and show me what homework you have done. Okay. Go to the previous page. Okay. Okay. Good. 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 Okay. You can rename yourself just like what your friends had done. Okay. Then Tanuja Mukane, are you there? Tanuja, are you there? Yes, sir. Okay. Switch on your camera and show me what homework you have done. सर मैंने 2 ही ड्रॉ किए हैं, बाकी के नहीं आए। और जो 2 ड्रॉ किया वो 1 दिखाओ। मिनट 1 मिनट। ऋषिकेश नायकोडी, Rishikesh, are you there? Yes. Okay. But first one is wrong, no? The upper one. Yes, Tanuja. Yes, sir.
upper one is wrong, na? What is wrong in it? X axis Y axis में नहीं निकला. अच्छा वो नहीं. The location of the which view you have drawn, that location is wrong. Yes sir. You know na what mistake you have done? Yes. Okay. Sagar Bhosle, are you there? Sagar Bhosle. Vijay Vairagde. Yes, sir. Okay, show me your homework. I'm sorry, sir. Actually, I'm outside. My notebooks are at home. Where are you right now? I'm outside, sir. I'm going somewhere. Sorry? I'm going somewhere, sir. I'm not at home. And while going, you are attending the lecture. Hello? Hello? When you will go back to your home? Sir, around 2-3 hours. Around In 2-3 hours, sir. 3 hours. Have you done the homework? Yes, sir. Yes, sir. I did. You will post me your homework on my WhatsApp. Okay? Okay, sir. Sure, sir. Yeah. Then Siddesh Khilari, are you there? Siddesh Khilari. Yes, sir. Yes, Show me sir. your homework. Sorry, sir. Not done, sir. Why? Any I will. reason? Not, sir. Not any particular reason. Okay. But I will post the homework on your WhatsApp group today only, sir. Okay, okay. Jaideep Patil, are you there? Jaideep Patil. Yes, sir. Have you done your homework? Have you done your homework? Okay. Good. Good. This is you have drawn with the pen or pencil. Pencil. Pencil, okay. ठीक है. Good, good, good. Okay, good. Now let me know how many of you have done the homework. Raise your hands. Very few. Very few have done the homework. Okay, anyways. चलो ये वाला प्रॉब्लम बोला था ना हमने. नहीं शायद ये तो हो ही गया है. Can you see the PPT? Yes, sir. Okay, so its answer you are aware. Then ये वाला भी शायद हो गया है. Now this is important. Okay, I know that you have done this. ठीक है, but have you understood this? ये जो प्रॉब्लम है ये समझा है क्या आपको कैसे ड्रॉ किया है? Yes, sir. Yes, sir. गुड. अगर समझा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बढ़िया है. ठीक है, देखो अभी कितने बच्चे हैं? 44 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अगर एक भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो. ठीक है, वी विल रिपीट इट. क्या होता है 2-3 यस सर वाले आवाज आती है और मैं आगे बढ़ता हूँ. बट आपको ऐसे कभी भी लगना नहीं चाहिए कि सर मुझे नहीं समझा है, फिर से एक बार रिपीट करो. ऐसा आपको बोलना है. Sir, sir, Yes. 28 वाला लीजिए ना एक बार. सॉरी 28. 20 28. 28. ओके, आगे वाला है ना, तो ठीक है लेते हैं ना हम लोग. अब सबसे पहले ये समझ में आया कि अगर कुछ भी डाउट है ना तो पूछो मुझे. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 लोग हाँ बोलते हैं और सर आगे चले जाते हैं. आई डोंट वांट दैट कंप्लेंट. ठीक है, मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझाए तो पूछो, मुझे बताओ, सो दैट वी कैन डिस्कस. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन तो आपको मिल गया है. ओके, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट
क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये यहाँ पे एयर पॉकेट है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज एन एयर पॉकेट। ओके, सो ये वाला अगर आपने एज इट इज ड्रॉ किया है, अभी बताओ मुझे कितने लोगों का सेम टू सेम है? यस सर कहो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 5 Yes, यस सर sir. आए, 6 Sir. Yes, sir. 8 Yes, sir. 9 Yes, sir. 10 Yes, sir. 11 Yes, क्या? sir. 12 Yes, sir. आवाज बदल के बात नहीं करना है। 13 Yes, sir. ओके 14 सी एट द मैक्स 20 रहेंगे आउट ऑफ 47। तो 47 में से 20 को आ गया, बाकी 27 को नहीं आया है, इसका मतलब चलो गलती कहाँ पर हुई है ये पता चला है। शायद ये हिडन लाइंस में गलती होगी। ठीक है, तो ये हिडन लाइंस प्रॉपरली देख लो कैसा है कैसा नहीं है, और बाद में ये जो स्लॉट है वो इमेजिन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगर आप ये इमेजिन नहीं कर पाते हो देन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक चीज है। जैसे कि हम लोग नए नए साइकिल सीखते हैं तो पिछले पहिए के नजदीक 2 और छोटे पहिए होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग वैसे चल रहे हैं। ये जो कलर कोडिंग है ना, ये हमारे वो 2 पहिए है, आगे चल के कलर कोडिंग हमारे साथ नहीं आने वाली। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है, जैसे अभी 28 वाला किसी ने पूछा है, सो वी विल डिस्कस 28 वन। दिस इज 27, दिस इज 28। ओके, आप में से कितने लोगों ने ड्रॉ किया ये 28 वाला? छह लोगों ने, 6-7 लोगों ने। ठीक है, गुड। ओके, चलो देखते हैं फिर अभी इसका सॉल्यूशन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। This is really challenging to teach you this engineering graphics subject online. ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए या फिर हम सब टीचर्स के लिए। ओके, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और बाजू में पेंट वाला फाइल है, आप देख सकते हो ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड। So let us assume that this is your drawing sheet or this is your page. ठीक है, now what we have to do, we have to draw the front view, then we have to draw the left hand side view, and then we have to draw the top view. Okay, now so सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? वेरी फर्स्ट वी ड्रॉ दी XY line, isn't it? We draw the XY line first. Okay, then this is what is the XY. Okay, over here then this is what will be the X1 Y1 line, X1 and this is Y1. ये बहुत ही लाइट है। ठीक है, then front view we are going to draw over here, top view we are going to draw over here, and over here left hand side view. So this will be which plane? Which is this plane? Tell me. Second angle. अरे एंगल वाला अभी नहीं बात कर रहे हैं, प्लेन प्लेन। अभी हमने इसको प्लेन पेपर के ऊपर रख दिया ना, देन विच वाज दिस प्लेन? सो दिस इज व्हाट
vertical plane, then this is Vertical plane, हाँ. horizontal plane, and this is profile plane. ठीक है. Now what we can observe first, so this blue color rectangle that we can observe first. Okay, so that is what we are going to draw. Okay, this blue color rectangle we have drawn. Then after that this strip, which is the gray colored one, and which is nothing but the inclined line. So if you see, कोई भी अगर एक इंक्लाइंड लाइन है तो किसी एक ही व्यू में वो अपना ट्रू शेप दिखाती है, या फिर ये एप्लीकेबल है इंक्लिनेशन के लिए और सर्कुलर पोर्शंस के लिए. जस्ट एज एन एग्जांपल, आई विल ओपन वन सिलेंडर, इजंट इट? 3D वाला ऑब्जेक्ट चाहिए ना, जस्ट अ मिनट. Okay, can you see this cylinder? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so if observer is observing from this particular end, okay, in the front view, what observer can observe? What he will observe? Now अगर आपके पास अभी एक पेन है ना, तो पेन को ऑब्जर्व करो. पेन इज ऑल्सो एज एन सिलेंडर, या फिर पानी की अगर बॉटल है तो इट इज ऑल्सो सिलेंडर. तो आप ऑब्जर्व करो, फ्रंट व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है? एक रेक्टेंगल नजर आएगा फ्रंट व्यू में. Similarly, in the top view, Yes, sir. you are going to see the rectangle again, top view mein, and in the side view, sorry, in the top view, you are going to see it as an circle if it is an bottle. If it is this particular rectangle, front view में भी आपको, if it is this cylinder, front view में आपको rectangle नजर आएगा, top view में again rectangle, और ये वाले view में, side view में आपको circle नजर आएगा. So this is what is the principle is. कोई भी अगर एक पर्टिकुलर शेप है, whether it is circle, whether it is ellipse, whether it is rectangular thing, whether it is inclined thing, वो अपना ट्रू शेप, असली चेहरा वो सिर्फ एक ही व्यू में दिखाता है. बाकी दोनों व्यूज में अपरेंट व्यू होता है. ओके, अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Okay, so because with the same principle, this particular two slant surfaces or two inclined surfaces will be visible as an rectangle only. यहाँ पर ये ऐसे सिर्फ rectangle ही नजर आएंगे. ठीक है? Now, as we are done with the surface, this particular surface, then we have this C, isn't it? So we can draw it like this. Isn't it? And then this portion. So how it will be? It will be like this. Then we are done with the front view. Now we will take the projections, and for projections I am using another color. So projection lines, we can draw it like this. I am considering this and this on one line, isn't it? Okay, so projection lines are done. Now, what we can observe from the top view, we can observe this portion. So, from here to here, then like this, isn't it? Sorry. This is what you are going to observe. Okay, first view. Then this particular thing. So how it can be? A line which is like this, then a line which is like this, isn't it? Okay,
and a horizontal line which is at this surface and the inclined line like this as well as like this. So I think 90% of students, 95% students have drawn like this only. Okay. Now, what is Yes, sir. remaining? Tell me. What is remaining in this particular top view? Dotted line. वेरी गुड. डॉटेड लाइन कहाँ पर? ये वाला जो सरफेस है ना, जो ऊपर से आपको नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से यही सरफेस नजर आ रहा है, बट ये वाला सरफेस कुछ ना उसके कुछ ना कुछ तो वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दैट इज नथिंग बट दी डॉटेड लाइंस लाइक दिस, इजंट इट? तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शंस. नाउ in the last lecture we had seen the circle wala projection, okay, या फिर arc wala projection. Now we will see the different method. So over here you have to mark the 45 degree point. 45 degree वाला एक point mark करना है आपको यहाँ पर ऐसे, okay, and then ये cursor नजर आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. From this point you will draw a line which is at 45 degree. Okay. So this is 45 degree. Now you will draw the projections from this particular points to this inclined line like this. Okay. And then you will project this in the side view. Now again projections from the front view like this. Okay. Now we have to draw the side view. So in the side view you can see this particular L, okay, and for how we are drawing it, we are observing from this particular side and then we are drawing it over here. Then in the top view we are observing from this particular side and then we are drawing it over here. Okay, so you have to remember the zone, in which zone we are going to draw. So first L we have to draw, so that L is nothing but in this particular zone. So line from here to here, okay, shade dark नहीं आ रहा है, line from here and then ये वाला zone यहाँ तक, मतलब we can start it line from here like this. This is what will be our first surface, isn't it? Second surface is this one, okay. So this is what is our second surface. Then this particular surface which is the inclined one, वो inclined कहाँ पर है? ये वाले zone के अंदर है. देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, ये वाला zone, मतलब ये वाला zone यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन सा वाला zone है? ये वाला zone है. So you have to identify the different zones. यहाँ से like this. Okay. Now, have you understood this? सर सुनो ना. Yes. सर ये समझ में मेरे को आ रहा है, बट वो डॉटेड लाइन है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. ये वाला टॉप व्यू. यस सर. ओके, अच्छा. और किसी को ये टॉप व्यू में डॉटेड लाइन कैसा है समझ में नहीं आया, ऐसा है कोई? यस सर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. पूछा सिर्फ एक ही बंदी ने और बाकी सबको भी डाउट है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? पूछना है आप लोगों भी, ठीक है. सी, अब ये आपको इमेजिन करना है. अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अभी.
Okay, now see, from the top view we can see this particular red surface, isn't it? ये red surface हमने draw कर दिया, but यहाँ पर एक कंटिन्यूस लाइन आ गई, यहाँ पर एक कंटिन्यूस लाइन, और ये सारी कंटिन्यूस लाइन है, ठीक है। बट इसके पीछे मतलब यहाँ पे नीचे वाले साइड पे एक और सरफेस है, ओके। तो वो सरफेस वहां पर है, बट ऊपर से हमें नजर नहीं आ रहा है। इन दो लाइंस के बीच में ऊपर से हमें ये सरफेस नजर नहीं आ रहा है, बट वो वहां पर है। इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हमें ये वाले जोन में डॉटेड लाइन से करना है, ठीक है। whenever we draw in any object in orthographics, we go from surface to surface. हम लोग एक सरफेस से दूसरे सरफेस जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ब्लू वाला सरफेस जो नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए यहाँ पे हमें हिडन लाइंस ड्रॉ करने हैं, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन। आगे ये नजर ऊपर से नजर नहीं आएगा, बट वहां पर वो सरफेस है, इसीलिए यहाँ पर वो डॉटेड लाइंस आएगी। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अभी ये अगर समझ में आया है तो और एक डाउट आना चाहिए, देखते हैं कि वो किसी को डाउट आता है कि नहीं। चलो बोलो, और किसी को कुछ डाउट है क्या? सर वो आपने एक दो लेक्चर पहले दो क्यूबॉइड्स के शेप दिखाए थे ना, हाँ, तो वैसे वर्टिकल प्लेन में वो स्लैंटिंग वाला नहीं दिखा सकते क्या? क्यूबॉइड वाला नहीं समझा नहीं, मैं आपका क्वेश्चन ही समझा नहीं। सर वो दो क्यूबॉइड्स है ना, जिसमें एक नॉर्मल क्यूबॉइड था और दूसरे वाले में उसकी Okay. पता चल रही थी। ओके, तो जस्ट अ मिनट, वैसे जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो। तो वैसे ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे स्लैंटिंग ड्रॉ करके डेप्थ भी बता सकते थे ना, मतलब ये अच्छा, मतलब स्लांट वाला सरफेस जो है वो किसी और डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। चलो वो भी देखेंगे हम लोग, बट इसमें और कुछ डाउट है क्या किसी को? आई एम एक्सपेक्टिंग वन क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल। जैसे ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया आपको कि ये वाला जो सरफेस है उसकी हिडन लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये समझ में आया, बट सेम फंडा और कहीं पर हमें अप्लाई करना है या नहीं? Yes, sir. Inside view, can we do that? एग्जैक्टली, साइड व्यू में भी सेम फंडा अप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो अभी ये व्यू में आओ, यहाँ पर आपने ये वाला सरफेस ड्रॉ किया, तो मतलब ये कंटिन्यूस लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। बट अगर इसके पीछे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी सरफेस है, ये ग्रीन पोर्शन के पीछे ब्लू वाला सरफेस है, बराबर। व्हाट अबाउट इट? Yes, sir. तो यहाँ इसको भी dotted line draw यहाँ पे भी डॉटेड लाइन आनी चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक। ऐसा डाउट किसी को आया या नहीं आया? yes, sir. आया है, चलो आया है तो गुड। नाउ सी, इसके लिए एक और प्रिंसिपल है। सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ सपोज देयर आर ओवरलैपिंग ऑफ टू लाइंस, ठीक है। ये फंडा आप अच्छे से समझ लो, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसको सेव करना पड़ेगा। सी, इसको अच्छे से समझ लो एकदम, ओके। इफ say for example this is continuous line, okay, and if continuous line is getting overlapped with the hidden line, अभी हमारी केस यही है ना, continuous line is getting overlapped with the hidden line. There are certain cases where any of this line gets overlapped with the, which is this line? Tell me. Center line. Yes, this is center line, isn't it? So these are the possibilities. This is 1, this is 2, and this is 3. Okay, we have to respect as per the hierarchy. Just for an example, we will take case of 1 and 2. 1 is getting overlapped with 2, means continuous line is getting overlapped with the hidden line.
So what we will do? We will draw the first line, isn't it? If sorry, if continuous line is getting overlapped, with the center line, then also we will draw the first line, that is nothing but the continuous line. Okay, if hidden line is getting overlapped with the center line, we will draw the hidden line. So over here in this particular case, in this particular region, our continuous line was getting overlapped with the hidden line. So from this particular formula, we drawn the continuous line. Have you understood this? Yes, sir. ओके Yes, अब sir. किसी को डाउट है क्या इसमें अभी कुछ? बोलो, अगर कुछ डाउट है तो हम लोग डिस्कस करते हैं. सर वो साइड व्यू में स्लोप वाला बताइए ना एक बार. नहीं, स्लोप वाला तो है ना यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये वाला, दैट इज द स्लोप वाला पोर्शन ओनली. जैसे मैंने कहा आपको, कोई भी इंक्लाइंड लाइन है तो इंक्लाइंड लाइन किसी एक ही व्यू में इंक्लाइंड नजर आएगी, बाकी दोनों व्यूज में वो एक स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी. तो यहाँ पर जो इंक्लाइंड सरफेस है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेस है और यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर सरफेस है. आ रही बात समझ में? I want reply for you from you. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना पक्का? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड. Yes, sir. किसी को भी डाउट है तो पूछो. सर. यस. सर No, जो no. आपने थर्ड लाइन, हाँ, थर्ड लाइन सर, जो सेंटर आपने लाइन जो- है वो ये वाली. लेंथ, सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो. वो वाली नहीं सर, वो फिगर में. अच्छा, फिगर में. सर वो फिगर में सर. ओके. हाँ सर, वो जो थर्ड लाइन निकाली जिसमें आपने ऊपर वाली लेंथ को नीचे वाली लेंथ से छोटा छोटा किया, जहाँ पे दो लाइन क्लोज आई है. स्क्रिबल करके बताओ मुझे कौन सा वाला आप बात कर रहे हो. सर दिस टू लाइंस. ओके. सर जो पास आई है ना सर लाइंस, तो वो इमेजिन नहीं हो रहा है कि सर नीचे की लेंथ ऊपर वाले से बड़ी है सर. अच्छा अच्छा, ये बात कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. मैंने क्या इमेजिन किया, यस योर बट योर पॉइंट इज वेरी गुड. आपने सही डाउट पूछा है, गुड. सी अभी यहाँ पर क्या मैंने क्या इमेजिन किया, जस्ट अ मिनट. अभी यहाँ पे मैंने इमेजिन क्या किया, ये वाली जो लेंथ है, दैट लेंथ इज बिगर देन दिस पर्टिकुलर लेंथ. बट if you are imagining that this length and these two lines are getting coincided, then also it is correct. अभी हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस नहीं है, इसीलिए अगर आप कुछ और इमेजिन करते हो और आपका फ्रेंड कोई कुछ और इमेजिन करता है, then it is okay. But whenever we will have the dimensions, वो imaginary part चला जाएगा. ठीक है? ओके सर. बट यू आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. वो दोनों कोइंसाइड भी हो सकता है या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकता है. गुड पॉइंट. यस, एनी अदर डाउट? ओके, आई डोंट थिंक सो कि अभी किसी के पास डाउट है. ठीक है, तो मैं और एक फाइल ओपन करता हूँ और जिसमें कुछ इंक्लाइंड वाला है क्या देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये थोड़ा हेवी पीपीटी है तो वो ओपन होने के लिए टाइम लेती है. बट एक बात समझ लो बच्चों कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर ड्रॉ नहीं करोगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, कावेरी सर साइड व्यू में स्लोप वाला बताए. अच्छा, साइड व्यू में समझ में नहीं आया कावेरी? बताया सर आपने. ओके ओके, गुड. सर आपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 दिया था ना, उसका जी. टॉप व्यू बताओ ना एक बार. 13 यस सर. ओके, जस्ट अ मिनट. हम लोग इंक्लाइंड वाला यहाँ पर देखते हैं पहले, बाद में वहां पर जाते हैं.
अच्छा ये भी सिंपल है। हाँ देखो अभी ये बढ़िया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो फ्रंट व्यू डायरेक्शन ये है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व करते जाओ। सो फ्रंट व्यू में क्या नजर आएगा, सिर्फ इतना ही नजर आएगा, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं स्क्रीन नजर आ विजिबल नहीं है। रही? अरे अभी Yes, यस sir. सर। सी नाउ दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंक्लाइंड पोर्शन है, ठीक है। इंक्लाइंड पोर्शन भी है, एक्सटेंडेड पोर्शन है, स्लॉट्स है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्यू, ओके। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द फ्रंट व्यू, ठीक है। नाउ इन द टॉप व्यू, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, टॉप व्यू। अब देखो फ्रंट व्यू में, अच्छा चलो तीनों देखते हैं, बाद में हम लोग जाते हैं उसके ऊपर। साइड व्यू, सो दिस इज व्हाट इज द साइड व्यू विच यू कैन ऑब्जर्व। और इसी को अगर हम लोग प्लेन पेपर के ऊपर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, देन वी कैन सी इट लाइक दिस। ओके नाउ सी, ठीक है। ओके सी दिस इज व्हाट इज द इंक्लाइंड सरफेस। ये वाला जो इंक्लाइंड सरफेस है वो फ्रंट व्यू में कैसे नजर आ रहा है, एज एन इंक्लाइंड लाइन, ओके। उसी को अगर हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इंक्लाइंड सरफेस एक रेक्टेंगुलर सरफेस में नजर आ रहा है आपको। वही अगर हम लोग साइड व्यू में देखेंगे, अगेन यू कैन सी अ रेक्टेंगुलर सरफेस, इजंट इट। तो कोई भी एक इंक्लाइंड लाइन है या फिर सरफेस है, वो एक ही व्यू में उसका अपना ट्रू शेप दिखाता है, और बाकी दोनों व्यूज में वो अपना अलग फेस दिखाता है। दैट इज नथिंग बट द apparent व्यू, ओके। वी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग एज एन apparent व्यू। वो हमें नजर आता है, बट हालांकि वो वैसा होता नहीं है, ठीक है। जैसे आप अगर कभी कभी बाई चांस गलती से अगर आप बीच के ऊपर गए हो या फिर पानी में अगर गए हो खेलने के लिए, ठीक है, तो पानी में देखो अगर आप एक बड़ी लकड़ी अगर उसके अंदर इंसर्ट करते हो, सो यू कैन सी कि वो जो लकड़ी वो टेढ़ी हो गई है, ठीक है। हालांकि वो टेढ़ी होती नहीं है, बट वो टेढ़ी हो जाती है, हमें दिखने के लिए वैसे दिखता है। इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर भी देखो ये जो स्लॉट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है, ओके। और ये स्लॉट में देखो अभी यहाँ पे क्या किया है, ये जो हिडन लाइन यहाँ पे दिखाई है बट यहाँ पे दिखाई नहीं है। दैट हिडन लाइन पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। सो आई होप स्लांट सरफेस वाला यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छा किसी के और कुछ भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। सर ये फ्रंट साइड का बताओ एक बार। फ्रंट व्यू वाला ये वाला देखो ना, ये वाला जो है Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन नजर, इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। देन ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये 4 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। देन यहाँ पे अंदर देखो, ये यहाँ पे हिडन लाइन है, बट यहाँ पे दिखाते समय उन्होंने क्या दिखाया, स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन दिखाई है। सो इट हैज टू बी अ हिडन लाइन, ओके, लाइक दैट। बाद में अभी ये वाला सरफेस ड्रॉ किया, बट इसके पीछे अगेन यहाँ पर एक सरफेस है। सो ओवर हियर our continuous line is getting overlapped with the hidden line. Now all of you leave the meeting and join meeting again. We have only 1 minute. Join meeting again immediately.